Namaste and a very good morning. I am Susan from Apollo Hospitals, Gandhinagar. We are in an unprecedented time and probably the most horrifying times of our age because of pandemic COVID-19. The world around us at large has come to a standstill, and in times like these, we have witnessed healthcare professions evolved as warriors in front line under the guidance and leadership of our eminent directors. In the hustle and bustle around us, we are here to discuss the impact of the pandemic in women's health. To discuss this issue with us, we have our very own Dr. Usha Bora Madam, who is the Chief Consultant of Obstetric and Gynecology. Recently, she has been awarded Namaste. as one of the best gynecologists in Western India by FICCI and Economic Times. We are here to discuss the positive impact of pandemic on women's health, and it's very amazing to hear such positive outcomes coming out of such chaos around us. Ma'am, thank you for joining us today. My pleasure, Susan. To start our discussion on the positive impact of pandemic on women's health, the first question for you is how did this come about, and what are the situations that have made you observe these positive influences? That's a very nice question, Susan. It came to my mind because I was never used to this kind of life, and I've never, maybe summer vacations when I was a young kid. But before the era of this lockdown, our life was so mechanical. And just get up, do your personal things, go for work, come back, have dinner, watch TV, and then go to sleep, and then another day. This time we have got a lot of introspection, lot of free time, and what happened was actually a couple of days ago, Dr. Anupam Sibal had organized a program with Sister B.K. Shivani, who is from Brahma Kumaris, and she's also my role model. When I listened to her, I thought, yes, she has so much of positive vibes in her, so much of positivity, and I should also do something which is affecting women's health. So what I did was I spoke to a couple of my friends, my cousins, some students, some of my patients, and my colleagues, and asked them that how they are feeling. Because after a week of lockdown, I felt much better, maybe physical health, mental health, spiritual health, because I noticed a lot of changes in myself. So I thought, let me ask the others. And then this idea came to my mind that yes, this lockdown in a way is affecting the women's health in a very positive way. Yes, ma'am. Given the scenario now, due to lockdown, everybody is at home. Even the working women are now at home. How do you think this lockdown will help these women improve their health and well-being? See, whenever we talk about health and well-being, three most important things are whichever book you read, whichever magazine you read is, one is you should have sufficient sleep, two is you should be eating healthy, three is you should be doing exercise regularly. Now what has happened is that the women who were working never used to get time to do some housework. Everything was dependent on their housemaid and ayah and whatever. But now, because they are staying at home, they are doing a lot of things on their own. That is jhadu, pocha, washing clothes, ironing clothes, dishwashing, cooking, etc., etc. So now they are getting a new insight in themselves, and they are also getting confidence. Like, oh, अब मैं झाड़ू पोछे भी लगा सकती हूँ. I thought कि मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगी. Like even I have done jhadu pocha at home and I enjoy it. I just put on music and it is really a very, it's like a stress buster. So these are few reasons, and because they are doing exercises, because they don't have to set an alarm to get up, because they are in the house with the family and their dear ones, mental health is also good, and that is the reason why I think they are utilizing their time properly. Yes, ma'am. Being locked down within the four walls has always remained a very big challenge. How do you see this impacts women's health, especially their emotional front? See, emotional front is also improving. When you are staying at home with your family, you wake up, you don't have a deadline to do anything. You have a cup of tea or milk, you sit outside, you watch the sky, you listen to the chirping birds around you, which you never did because in
before the lockdown you never had a time to enjoy the mornings like this. So the way your morning starts, it makes you feel much better. Then your family is staying with you. Otherwise, for my own example, like me and my husband, we are working in the same hospital, but we both are so busy that even in the hospital we don't get to spend 5 or 10 minutes with each other. All we do is meet in wards, or maybe when there is some reference we just talk on phone. So our life has become much better. At least, though I'm married for almost 32 years, I think I've still discovered a lot of good qualities of my husband which I think I used to ignore. So similarly, a lot of ladies, they are also having good time with their family. They are understanding their kids better. Kids are happy. So when parents are around, they are learning new skills. Like I started learning painting and I'm enjoying it. A lot of friends have decluttered their house, which has given them a lot of satisfaction. So this is the way they are in the four walls of their house. They are happy and healthy. Yes, ma'am. One's own free space is a dream of every woman. And how do you think that social distancing norm would add to these in a times like this? And how do you feel a woman should cope up with all these? See, whenever it comes to coping up, I think females always cope up better than men. And social distancing is like you're not meeting people in person, but actually you have free time for yourself, which is me time, during which you can do आप अपना आत्म ज्ञान या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हैं उस समय. और सोशल डिस्टेंसिंग इन द सेंस नहीं है, क्योंकि आपको इतना अच्छा समय मिला है कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से कैचअप करके, उनके सुख दुख बांट के आप काफ़ी कुछ शेयर कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं. और मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, ma'am. When we talk about women, there is a special group of women who really need very good care. That is the pregnant women. What are your thoughts about the impact of the pandemic on pregnant women? See, a pregnant woman by pandemic as such, not many are affected. Probably जो बहुत ही लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, उनके ऊपर हेल्थ का कोई इस कोविड-19 का कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया. वो घर पे रह रहे हैं. उनके एक्चुअली दे हैव गॉट एन एक्सटेंडेड मैटर्निटी लीव. नॉर्मली उनको 4-6 महीने की जो डिलीवरी के बाद लीव मिलती है, वो उनको अभी से उनको छुट्टी मिल रही है. तो दे आर एन्जॉइंग, they are having a healthy diet, they are having good time with the family, they are being spoiled with various kind of foods, so they are having a good time. And at the same time they have this facility of teleconsultation with the doctors. So I think it is not, and what actually we have done is we have over medicated the pregnancy is a normal physiology. 70% of the women in India, they live in villages and they have normal delivery, most of them. So I think here also, when the pregnant women are listening to us, they have because they were working or for some reason they did not have time, so they are exactly doing what exercises we are advising them. They are taking their iron regularly, they are having a healthy diet. So lot of symptoms, before this COVID-19 era, I used to get lot of phone calls, madam heartburn हो रहा है, madam नींद नहीं आ रही है, madam ऐसा हो रहा है. तो these calls have suddenly dropped down because a lot of symptoms have gone because of this positive environment at home. Yes, ma'am. Can you share some of your own experiences of your patients that you have found something? Yeah, this is actually one of my favorite topic, because in the last 6 weeks I have noticed a lot of positive things, because my patients are calling me. I'm a specialist in benign gynecology and cancer specialist. I treat infertility, but I'm not a specialist, just level 1 infertility. कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, कम से कम मेरे पास 5 या 6 पेशेंट्स का कॉल आया कि मैडम हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, हम थैंक यू वेरी मच, हम आपके ट्रीटमेंट में थे. अब मैंने तो उनको कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया नहीं. हुआ ये कि उन लोगों को अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम मिला, उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ.
क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग यू आर डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट, आपको घर की जिम्मेदारी है, आपको जॉब की जिम्मेदारी है, आपके बॉस ने कुछ बोल दिया तो आपका दिन खराब हो गया. बिकॉज यू आर एट होम यू आर रियली गेटिंग अ क्वालिटी टाइम. और स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग प्रेगनेंट. इट्स अ नोन फैक्ट, क्योंकि आपके ब्रेन से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, फिर आपका ओवुलेशन होता है. तो मैं इसके डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी. जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट कलीग्स हैं कुछ से मैंने बात करी कि क्या आपने भी ऐसा नोटिस करा है. तो दे सेड हाँ मेरे भी 2-3 पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए हैं, हाँ मैंने भी ऐसे 2-3 पेशेंट्स का सुना है. तो इट रियली गेव मी अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट. एंड मुझे ये भी लगा कि अगली बार जब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आएंगे तो हम उनको वाकई में ये कहेंगे कि आप है ना योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस, जो भी चीज़ आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है वो करो. एंड वी कैन गिव दम एग्जाम्पल्स कि मैं इस पेशेंट का इलाज कर रही थी पिछले 1.5 साल से, पर अभी 1.5 साल के बाद इसने कंसीव कर लिया. एंड प्रोबेबली तो नहीं कहूँगी, सर्टनली इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्पेंडिंग अ गुड टाइम एट होम. सेकेंडली मैंने ये देखा है कि आजकल के यंगस्टर्स, मेरे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स काफ़ी सारे आते हैं जो ओवरवेट होते हैं, और दूसरी बात उनके अननेसेसरी अनवांटेड जगह पे हेयर होते हैं, एक्ने होते हैं, दे आर स्ट्रेस्ड आउट, दे हैव गॉट लो सेल्फ एस्टीम. तो कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि उनके पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने से आ नहीं रहे थे, किसी के 6 महीने से नहीं आ रहे थे. पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले अचानक फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम मेरे पीरियड्स आ गए, और मुझे मालूम नहीं कि कौन सा पेशेंट है, इनफर्टाइल है, क्या है. तो मैंने पूछा क्या आपका क्या प्रॉब्लम थी, कि मैडम हमको PCOS था, अब मैं आगे क्या करूं, मेरे 2 बार आपको दिखाने के बाद नॉर्मल पीरियड्स आ गए हैं. तो मैंने कहा अब आप अपना वजन कम करो. एंड टू माई सरप्राइज शी सेड कि मैडम आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मेरा वजन पहले 72 kg था, अभी मेरा 68 kg है, 4 किलो वजन कम हो गया है. एंड मैंने भी पूछा अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लॉकडाउन के पीरियड में तुमने इतना वजन कम कैसे किया. तो उसने यही कहा कि मैडम सारा घर का काम मैं अपने आप करती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैडम बाहर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकते. नेकी और पूछ. सिमिलरली 2-3 of my patients of polycystic ovarian disease, they also lost weight. So it's again because they are getting time to learn about their body, free time to kind of take care of their body. बाहर का जंक फूड बंद हो गया, ऑर्डर नहीं कर सकते, स्विगी से खाना नहीं मना, तो मरता क्या ना करता. अगर आपको भूख लग रही तो आप बनाओगे ही सही. अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो इट इज़ अ वेरी हेल्दी फूड. तो घर के काम करने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छा खाना खाने से, नींद अच्छी आने से उनकी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसको बेसिकली सभी लोग मानते हैं कि अगेन इट इज़ बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. तो अपने आप इस लॉकडाउन में उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई और उनकी बीमारी ठीक होती गई. सो आई थिंक again in future when I'm treating my patients of polycystic ovarian disease, I'm going to take a more holistic approach in treating them rather than just prescribing them multivitamins and थोड़ा सा भाषण दे दिया कि हाँ आप कैलोरीज कम करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि उस समय अपने पास समय कम होता है. पर शायद वो बात अभी जाके उनके दिमाग में फिट हुई है, तो आई एम हैप्पी दैट यस. तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं शेयर करूँगी कि फरवरी के महीने में अपोलो हॉस्पिटल का सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा था. अभी मार्च-अप्रैल में सडनली दैट रेट हैज़ गॉन डाउन. वो इसलिए क्योंकि हम जब टेली कंसल्टेशन करते हैं, पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम लेबर में हैं मैडम. तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आप छोटे से दर्द में मत आ जाइए. समटाइम्स यू कैन हैव फॉल्स लेबर पेन्स. जब 10 मिनट में आपके 3 बार पेन्स हो रहे हैं, जब आपके कोई ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है या ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर आप आधे घंटे में हॉस्पिटल, तो जितना पेन आप घर पे रह के सह सकते हैं उतना सही है, फिर आप हॉस्पिटल. तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग व्हेन दे आर 5 or 6 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, और आते ही उनकी 2 घंटे में डिलीवरी हो जाती है. तो द पेशेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी. एंड देखा जाए तो आगे से हमको वैसे भी मतलब सिजेरियन सेक्शन रेट, आजकल की जो लेडीज़ हैं या जो जनरेशन है वो पेन सहने के मामले में बहुत ही कमज़ोर है, पर शायद इस लॉकडाउन ने उनको पेन सहना भी सिखा दिया है. मैंने 2000 में
1000 प्राइमरी ग्रेविडाज में स्टडी करी थी, इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। उस समय मैं नेशनल मैटरनिटी हॉस्पिटल डबलिन में थी। तो देयर द इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इन फर्स्ट टाइम मदर्स वाज 96%। तो जब वहाँ 96% हो सकती तो यहाँ केवल 50% क्यों होती है? दैट्स बिकॉज वहाँ हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर करते थे। यहाँ भी हम करते हैं, पर यहाँ क्या आजकल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। हमको तो सिजेरियन कर दो, हमको दर्द नहीं सहन करना, हमको एपिड्यूरल नहीं लेना। तो अगेन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद वापस मैं एक बार ये ट्रेंड चलाऊंगी कि यस, अगर आप थोड़ा डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस हैं। तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी मैंने ये चेंजेस देखे। Yes, ma'am. Ma'am, talking about working women, we see a lot of women like us who are in the front line working and battling it out for all of us. Yeah. How do you see this pandemic personally change your health view? And the way you take care of yourself, has it changed? I think it has changed a lot, the way I take care of my health, because before the lockdown era, I was actually very busy with the work. Traveling for conferences, traveling for giving lectures, teaching, and home front also. So now, since we are not running OPDs, we are not doing elective surgeries, हम लोग केवल emergencies attend करने के लिए आते हैं, तो घर पे मुझे बहुत समय मिलता है। मैंने अपने कलीग से भी बात करा, मैंने अपने पूरे घर की डीक्लटरिंग करी। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में पिछले 32 साल में मेरा घर इतना साफ नहीं रहा होगा, डिस्पाइट हैविंग सर्वेंट्स, जो आप खुद अपने हाथ से करते हो। सारे वार्डरोब्स क्लीन हो गए, सारे बेकार के सामान या अनवांटेड जो गिफ्ट्स थे वो निकाल दिए गए हैं। गार्डनिंग बहुत ज़्यादा मैं करने लग गई हूँ, एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। तो मुझे तो ये लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गीता, रामायण, महाभारत, ये शंकर पुराण, शिव पुराण, ये सब कभी नहीं पढ़ी थी। अब पिछले 1 महीने से ये सारी मैंने गीता ख़त्म करी है। नेक्स्ट मैं रामायण रोज टीवी पे देखती हूँ। अब मैं शिव पुराण पढ़ना शुरू करूँगी। तो ये सब चीज़ें जो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। खाना मैं नए डिशेस ट्राई कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो मेरा 2-3 किलो वजन कम हो गया है। तो दैट इज़ ऑल्सो like a positive effect on me. So I am so very happy with the lockdown. Yes, ma'am. It has really improved your health a lot. Do you have any startling instances that you have noticed among your colleagues and co-workers that you would like to tell our viewers? Startling incidences तो मैं नहीं कहूँगी, but yes, जितनी भी friends हैं वो लोग यही कहते हैं कि ये वाकई में अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हुई, तो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर्स ही हैं। तो सभी यही कहते हैं कि हमको घर में ऐसा समय पहले कभी नहीं मिला। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, डीक्लटरिंग ऑफ द हाउस, घर का काम करना, बड़ों की सेवा करना, इन चीज़ों की मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो अननोटिस चले जाते हैं, लाइक इवन आप कपड़े धो के सुखा के उनको फोल्ड कर रहे हो, तो इसमें इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, और उनका एक्चुअली सबका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा मैंने ये भी जो स्टार्टलिंग ये हो रहा है कि सडनली जो पेशेंट्स हैं उनका भी डॉक्टर्स के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एट अ पर्सनल लेवल भी मैं देखती हूँ, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स बेचारे अपनी जान खतरे में डाल के और हमको अटेंड करने आते हैं। जैसे हम इमरजेंसी सिजेरियन के लिए आते हैं या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए आते हैं, तो कई बार उनके फादर आके पैर छूते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब पहले कभी ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होते कि मैडम आप इस समय में भी आके आपने ऐसा किया। तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि पिछले 1 साल में अपन कई बार सुनते थे डॉक्टर्स ने के ऊपर अटैक किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो आई थिंक कि डॉक्टर्स के लिए भी रेस्पेक्ट विच इज़ इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक दिस शुड परसिस्ट, बिकॉज सारे डॉक्टर्स कभी भी किसी मरीज का बुरा नहीं चाहते हैं। कभी कभी उनकी किस्मत या भगवान की इच्छा होती है कि कुछ बुरा हो जाता है, और कभी कुछ सिरफिरे लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। पर मुझे लगता है कि इन जनरल लोगों में अब ये जागृति आ गई कि नहीं, डॉक्टर्स अपने समाज का एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा हिस्सा है, और उनको उनका ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए।
Yes, sure, ma'am. Finally, what message would you like to give to all the women who are out there fighting this pandemic in their homes or in the front lines? आई थिंक सारी वुमेन को अपने आप मैसेज मिल ही गया होगा कि एक तो ये पैंडमिक है और पहले भी विश्व में बहुत सारे पैंडमिक्स आए हैं, तो कोई ज़िंदगी भर ये पैंडमिक तो लास्ट करने वाला नहीं है. अभी जितना टाइम लॉकडाउन का चल रहा है, वेदर यू आर अ हाउसवाइफ, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ वर्किंग वुमन, जस्ट थिंक कि दिस टू शैल पास. ये समय भी चला जाएगा. अभी जो आपका समय है, आप अपनी पर्सनल हॉबीज़ डेवलप करने में, एक्सरसाइज करने में, अच्छा खाना खाने में, दूसरों की सेवा करने में, चैरिटी का काम करने में, बहुत सारे काम करने में आप अपना समय बिताइए. आप इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, इंस्पिरेशनल वीडियोस पढ़िए. मैं कभी क्रॉसवर्ड जाती थी तो इतनी सारी बुक्स उठा के ले आती थी, पर कभी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था. अब जाके मैंने एक एक किताब पढ़ना शुरू करा है. कुछ मैंने लिखना, डायरी भी लिखना शुरू करी है. तो मैंने पेंटिंग शुरू करी. तो आपको जो भी हॉबी अच्छी लगती है, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सूजन आपको इनवाइट करती हूँ कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ मेरा एक घर एक बार आके देखो और मेरा गार्डन भी आके देखो. मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल में मेरा घर और मेरा गार्डन इतना साफ नहीं रहा होगा. Yes, ma'am, I will surely come. Ma'am, there's a very nice question asked by one of our viewers, Seema Kashyap. Okay. What do you think would be the state of family compatibility post-corona? Do you think it will improve or will it revert back to the same communication gap among members? That's actually a very good and interesting question. जहाँ तक फैमिली कंपैटिबिलिटी का सवाल है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम शुरू करने से मैंने कम से कम 150 से 200 लेडीज़, कलीग्स, फ्रेंड्स, कज़न सबसे बात करी थी. तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि है ना, हमारी फैमिली कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है. और स्पेशली राजस्थान में तो ऐसा था कि मेल्स जो होते हैं उनको घर का ऐसा मतलब थोड़ा सुपीरियर इंसान माना जाता है कि नहीं, ये घर के काम नहीं करेंगे, ये झाड़ू नहीं करेंगे, ये केवल गरम गरम रोटी खाएंगे. पर अभी क्या हो रहा है कि जब ये मेल्स या हस्बैंड या फादर देख रहे हैं कि इनकी वाइफ्स या इनकी बेटियां या इनकी बहुएं इतना तन मन धन से घर का काम कर रही, तो उनको थोड़ी सी शायद या तो आत्मग्लानि होने लग गई है या वो उनके हाथ आगे बढ़ रहे हैं. इवन जैसा अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरे हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी गुड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पर वो मेरे को हेल्प करते हैं, वो पोछा लगाते हैं. तो इट्स नॉट मतलब जो जेंडर इक्वालिटी है, कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली. और इससे ना मेरे आई डू रेस्पेक्ट माई हस्बैंड, पर मेरा फिर उनके लिए और रेस्पेक्ट बढ़ गया. जैसे अगर मैं आज यहाँ के लिए टॉक शो के लिए आई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे को पीछे से क्या क्या काम करना है. तो इट वॉज सच अ थिंग. नहीं तो पहले तो नोबडी यूज्ड टू आस्क, सबको मालूम था कि नौकर है, सब कर देंगे. तो फैमिली कंपैटिबिलिटी आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी गुड. Lot of misunderstandings will be cleared, and I thank Mrs. Seema Kashyap for asking me such a nice question. Thanks. Any other questions? No, ma'am. Thank you very much, ma'am, for your time. We are blessed to have such good insights given by you, especially in a pandemic like this. And to all the women, stay safe and stay home. We are almost at the time of winning this battle. Last, I would like to tell you that Apollo Hospitals Group has launched Apollo 24/7 app, which you can download from the Play Store, and you can consult for yourself as well as your loved ones to all our super specialist consultants online. It's completely secure, safe and confidential. You can note down our number 769-881-5050. I repeat, 769-881-5050 for any queries or further help related to this. Thank you. नमस्ते. आप सब लोगों ने मेरी वार्ता सुनी. आई होप आपको पसंद आई होगी. आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे और आपका आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहे. यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी. ओम शांति.